بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ایک بڑی عظیم شخص کے تذکرے کو لے کر پیش ہوا ہوں۔ ضرور آپ میرے اس ویڈیو کو سنیں گے اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم اپنے اسلاف کے بارے میں جانیں کہ وہ کون سی شخصیات تھیں، وہ کیسی شخصیات تھیں، انہوں نے کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی، ان کے حکم کو بجا لایا، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گئے۔ 13 رجب 600 عیسوی عام الفیل کے 30 سال بعد ابو طالب کے گھر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جو عظیم شخصیت ہے، اور ان کی پیدائش سے پتہ لگتا ہے کہ وہ عام بچے نہیں تھے، وہ عام شخصیت نہیں تھی کہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا عبادت کرنے کے لیے بیت اللہ میں تشریف لائی۔ انہیں درد ذہ شروع ہو گیا، بیت اللہ کا دروازہ کھلا، وہ اندر تشریف لے گئے اور وہاں بچہ پیدا ہوا جس کا نام رکھا گیا تھا حضرت علی۔ ان کو بعد میں القابات سے نوازا گیا: شیر خدا، حیدر کرار، ابو تراب، ابو الحسن۔ اب دیکھیں ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک واحد شخصیت ہے کہ جن کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ بیت اللہ کے اندر پیدا ہوئے۔ نہ ان سے پہلے کبھی کسی انسان کو یہ فضیلت حاصل ہوئی، نہ ان کے بعد کبھی کسی کو یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ وہ بیت اللہ کے اندر پیدا ہوئے ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہہ ایک واحد شخصیت ہیں جن کو یہ فضیلت حاصل ہوئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 سال کی عمر میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے یہ ذمہ داری لے لی کہ حضرت علی کا سارا خرچہ میرے ذمہ ہے، یہ میرے ساتھ رہے گا، اس کا پالنا، اس کا کھانا، اس کے کپڑے سب میرے ذمہ دار ہیں۔ کیونکہ حضرت ابو طالب کے بڑے خاندان والے تھے، معاشی طور پہ کمزور تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ حضرت علی بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ان سے سیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی حضرت علی کے استاد ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 10 سال کے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اعلان کیا میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں اللہ کی طرف سے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 30 سال چھوٹے تھے۔ تو سب سے پہلے بچوں میں ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عمر 10 سال ہے۔ ان کا دل صاف تھا، ان کا ذہن صاف تھا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو حضرت علی نے لبیک کہا۔ مردوں میں، بالغ حضرات میں حضرت ابوبکر صدیق سب سے پہلے ایمان لانے والے، عورتوں کے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لانے والی۔ اب اس معاملے کو موضوع سخن بنایا جاتا ہے کہ کسی مجلسوں میں، کئی معاملات میں، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ایمان لانے والے، حضرت ابوبکر صدیق یا پہلے ایمان لانے والے۔ تو اس معاملے کو اگر تاریخی روایات میں دیکھا جائے، میرے اندازے میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ کیوں؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو دیکھا تو وہ سب سے پہلے اپنی زوجہ محترمہ کے پاس گئے، انہیں کہا مجھے چادر دو، مجھے کمبل دو، مجھے ڈھانپ دو، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، اپنی ہلاکت کا خطرہ ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تسلیاں دی، انک تکسب المعدوم تقری الضیف تعین نوائب الحق۔ اس طرح کی روایات آتی ہیں کہ آپ تو حق کی مدد کرنے والے ہیں، آپ لاچار کا ساتھ دینے والے ہیں، حق کے لیے آواز اٹھانے والے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، اللہ پاک آپ کو کبھی ہلاک نہیں کریں گے۔ تو ان جملوں کو دیکھ کر لگتا ہے سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اب میں یہاں ایک اور بات کا اضافہ کرتا ہوا چلوں کہ دیکھیں، اگر پہلے ایمان لانے والے حضرت علی ہیں یا حضرت ابوبکر صدیق ہیں یا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے ان کی فضیلت پر کمی نہیں آتی۔ ہر ایک کا اپنا کردار ہے، اپنا رول ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان ساری مشکلات کا سامنا کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئیں، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل البیت میں سے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی اس وقت تک تو محفوظ رہے جب تک حضرت ابو طالب زندہ تھے، حیات تھے، ان کی حفاظت کرتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام مشکلات کا سامنا کرتے رہے۔ اب ہجرت کا حکم آ گیا۔ اب دیکھیں، میں یہاں کچھ اور باتیں بھی اضافہ کرتا چلوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے سفر کے لیے اپنا ساتھی کس کو چنا؟ حضرت بکر صدیق کو۔ اب مکہ کی ذمہ داریاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ذمہ تھی، مکہ والوں کی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، تو یہاں کی ذمہ داریاں اللہ کے نبی نے کس کو دی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ اب دیکھیں 22 سال عمر تھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت جب یہ ذمہ داری سونپی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ یہ میری امانتیں ہیں، مکہ والوں کو واپس کرنی ہے، میرے بستر پہ سونا ہے۔
उधर रफीक सफर के लिए चुना हज़रत बकर सिद्दीक को, क्योंकि वो सफर भी मुश्किल था, कठिन था, पता था कि हर कदम पे खतरा है। उधर चुना जा रहा है बकर सिद्दीक को, ये बिस्तर पे भी खतरा था कि यहाँ भी आएंगे, हमला करने के लिए तैयारियां हो रही हैं कुफार की तरफ से। अब देखे दोनों खतरे के लिए कितनी बड़ी अजीम शख्सियत को चुना गया। एक खतरे के लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को चुना गया, उन्होंने भी कहा लब्बैक या रसूलल्लाह, मैं हाजिर हूँ, आपके बिस्तर पे मुझे मौत आ जाए, इससे बड़ी मेरी सादत क्या है। उधर से बकर सिद्दीक ने क्या कहा, या रसूलल्लाह मैं हाजिर हूँ, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मैं आपका रफीक सफ़र बन रहा हूँ। जो लोग इन हजरात के दरमियान तकाबुल करते हैं, जो लोग कहते हैं फलां अफजल है, फलां अफजल नहीं है, फलां कमतर है, फलां बरतर है, तो मैं उनके लिए साथ साथ कुछ तारीखी रिवायात लेकर चल रहा हूँ ताकि हम अपने अकल से सोचें तो सही कि हज़रत अली या हज़रत बकर सिद्दीक दोनों बरगज़ीदा थे, दोनों अल्लाह के मुकर्रब थे, दोनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक थे। अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सुबह अपनी जिम्मेदारियां अदा की, मदीने की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चल पड़े। मदीने पहुंचे, 2 हिजरी को ऐलान हुआ अबू सुफियान का लश्कर शाम से आ रहा है, माल तिजारत लेके चलते हैं, उस पे हमला करते हैं, क्योंकि वो उनके साथ हमारा मुकाबला था। जब उन्हें कुफार को मौका मिलता था मुसलमानों पे हमला करते थे, अब मुसलमानों को मौका मिल रहा है कुफार पे हमला करने के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया चलो, 313 फर्द जमा हुए, रवाना हो गए। लेकिन अबू सुफियान को इस खबर की भनक पड़ गई, उसने पहले अपना कासिद मक्का की तरफ भेज दिया कि जाओ ऐलान करो, अगर अपना सामान बचाना है, लश्कर बचाना है तो फौरन निकलो। तो वहां से अबू जहल की क़यादत में 1000 बंदा निकला मुसलमानों के मुकाबले में। अबू सुफियान बड़ा दिलेर आदमी था, समझदार आदमी था, उसने क्या किया, समंदर का रास्ता अपनाया और मक्का में चला गया। अबू जहल को पैगाम भेजा कि वापस आ जाओ, मैं पहुंच गया मक्का। उसने कहा आप वापस नहीं आएंगे, आप जाके मुसलमानों पर रोब तारी करेंगे, हम बदर के मकाम तक जाएंगे फिर वापस आएंगे। लोग अबू जहल की बातों में आकर बदर के मकाम पर पहुंच गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बगैर सरो सामान से निकले हुए थे, एक ऊंट पर 3-3 सवार मुकर्रर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सवारी के शरीक थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बारी बारी सवारी पर सफर करते थे। का मैदान सज गया, 3 कुफार निकले ललकारते हुए मुबारजत के लिए, वलीद, उतबा, शैबा, कि आओ हमसे मुकाबला करो। तो मुसलमानों की तरफ से पहले 3 अंसार निकले थे। अंसार जब गए उन्होंने कहा तुम कौन हो, कहा हम अंसार हैं। कहा हमने आपसे मुकाबला नहीं करना है, मोहम्मद अपने कौम में से भेजो, हम तो तुमसे मुकाबला करने के लिए आए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली, हज़रत हमज़ा, हज़रत उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन को मैदान में उतारा। हज़रत अली ने एक ही वार में वलीद का काम तमाम कर दिया, हज़रत हमज़ा ने एक ही वार में शैबा का काम तमाम कर दिया, हज़रत उबैदा थोड़ा ज़ख्मी हो गए, फिर हज़रत अली ने ही उतबा को मार दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो वहद शख्सियत हैं जिन्होंने बदर के अंदर 19 कुफ़ार को मारा। उहद के अंदर भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बहुत ही जुर्रत का मुज़ाहिरा किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे, लेकिन एक बार थोड़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर हो गए, कुफ़ार दरमियान में हैल हो गए और ऐलान हो गया कि नऊज़ु बिल्लाह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा शहीद हो गए। तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होश बाख्ता हो गए। आपने कहा कि ये क्या हो गया। फिर कहा जब मोहम्मद मुस्तफ़ा चले गए, अब इस दुनिया में जीने का हमें भी कोई हक़ नहीं है। तलवार निकाला और हजूम के अंदर घुस गए, हजूम को चीरते गए, लश्कर को चीर पाड़ करते गए। आगे देखा कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूम के अंदर घिरे हुए हैं, एक घड़े के अंदर घिरे हुए हैं, चोटें आई हुई हैं, तलवार के ज़ख्म लगे हुए हैं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस घड़े से बाहर निकाला। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी आपके साथ थे, फिर उनको पहाड़ी की तरफ ले गए थे, क्योंकि वो ओहद का मैदान ही ऐसे था कि जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 लोगों को दर्रे पे खड़ा किया था कि आप लोगों ने यहाँ से नहीं हटना, भले कुछ भी हो जाए। जब कुफार भागे, मुसलमान माले गनीमत समेटने लगे, तो उन लोगों ने देखा कि अब फतह हो गई है तो हम भी जाके माले गनीमत समेटते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने मना किया कि मत जाओ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक नहीं बुलाएंगे हमें नहीं जाना चाहिए। 10 बंदे रुक गए, 40 नीचे उतर आए। खालिद बिन वलीद, इकरमत बिन जहल जो बाद में इस्लाम ले आए थे, उन्होंने देखा कि ये दरा खाली हो गया है, तो उन्होंने वहां से हमला किया, उन 10 को शहीद किया। फिर आके मैदान के अंदर भगदड़ मच गई, तो जिसकी वजह से ये सारा मामला ओहद का थोड़ा उल्टा हो गया। तो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहारा देकर पहाड़ी की तरफ ले गए और हज़रत तलहा नीचे बैठे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ऊपर पैर रखकर पहाड़ी के ऊपर चढ़े।
फिर हज़रत अली को कहा कि जाओ देखो कि ये कुफार का लश्कर घोड़ों के ऊपर बैठ के जा रहे हैं या ऊँट पे ऊपर बैठ के जा रहे हैं। अगर ये घोड़ों पे बैठ के जा रहे हैं तो इनका इरादा है मदीने पे हमला करने का, अगर ये ऊँट पर बैठ कर जा रहे हैं तो ये वापस मक्का जा रहे हैं। तो हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनके हाथ में झंडा था ओहद का, जब वो शहीद हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो झंडा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दिया। तो इस मैदान में भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़े कारनामे दिखाए। यहाँ आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का चाचा हज़रत हमज़ा भी शहीद हो गए थे। फिर खंदक के अंदर अमर बिन वुद के साथ मुकाबला हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुआ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे ठहरे हुए थे। खंदक का मैदान है, अमर बिन अब्द वुद निकलता है और ऐलान करता है कोई है जो मुझसे मुकाबला करे, कोई है मई कला। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़े, या रसूलल्लाह मैं इससे मुकाबला करता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया अली वो अमर है, अमर। फिर अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चुप करके पीछे खड़े हो गए। दोबारा उसने पुकार दी, कोई है मुझसे मुकाबला करे, कोई मई का लाल है, कोई गैरतमंद है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह मैं जाके इसके मुकाबला करता हूँ, मैं जाके इसको बताता हूँ। आपने फरमाया वो अमर है, अमर ए अली। फिर अली रज़ी अल्लाह तआला खामोश है। तीसरी बार जब पुकारा फिर कहा, या रसूलल्लाह मैं हाजिर हूँ, मैं जाके मुकाबला करता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जाओ इसका मुकाबला करो। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे एक ही वार में ख़त्म कर दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खैबर के मैदान में, आँखों की शिकायत है, आँखें दर्द कर रही हैं। खैबर का एक किला कामूस फतह नहीं हो रहा। पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कोशिश की, उनसे भी फतह नहीं हुआ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कोशिश की, उनसे भी फतह नहीं हुआ। आपने इरशाद फरमाया लअउतियन्न रायता गदन रजुलन युहिब्बुल्लाह व रसूलहु युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु। एक ऐसा जुमला है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए सर्टिफिकेट है। क्या सर्टिफिकेट है कि कल मैं ऐसे शख्स को झंडा दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। अगला जुमला ही कमाल का है कि अल्लाह और उसके रसूल भी उस शख्स से मोहब्बत करते हैं। कितनी बड़ी शख्सियत होंगे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कितनी बड़ी फजीलत वाली बात है कि अल्लाह और रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। तो अली को बुलाया गया, कहा कि उनकी आंखों में दर्द है। आपने फरमाया से ले आओ। आपने अपने लआब मुबारक उनकी आंखों पे लगाया, आंखें बिल्कुल ठीक हो गई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़े, किला कमूस के करीब जाके यहूदियों को दावत दी, अल्लाह की तरफ बुलाया कि मान लो तुम्हारे लिए वही जो हमारे लिए है, तुम्हारे ऊपर भी वही फर्ज लागू होंगे जो हम पर फर्ज लागू हुए। तुम हम में से एक हो जाओगे, या तो फिर जिजिया दो और खुद को हमारे मातहत कर लो। तो मरहब वहां से निकला, अपने असले को लहराते हुए, अपने मोती और जहवरात से लदे हुए खौद ज़िरा पहनकर बाहर आया और कहा कद अलिमत खैबर अन्नी मरहब। पूरा खैबर जानता है मैं मरहब हूँ, शाकी सिला बतल मुजर्रब, असले से लैस बहुत बहादुर तजर्बेगार। इधर से मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवाना हुए। फरमाने लगे सम्मतनी उम्मी हैदरा कलैसी गाबातिन करीहिल मंजरा। ओ तुम्हारा नाम मरहब होगा लेकिन मेरा नाम मेरी माँ ने हैदर रखा है, हैदर शेर रखा है। मैं जंगल के शेरों की तरह खूनखार बहादुर हूँ। और उसे एक ही वार में ऐसे मारा ये चीर डाला उसे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला लड़ रहे हैं, तलवारें टूट गई, आपका ये जो ढाल है वो भी टूट गया। फिर आप किला कमूस के आगे बढ़े और उस दरवाजे को खेड़ा, उस दरवाजे के एक पार्ट को अपना ढाल बना लिया। इतनी बहादुर शख्सियत और ताकतवर शख्सियत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के साथ बहुत मोहब्बत का इजहार किया। जब मक्का से हिजरत करके मुसलमान मदीना पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार और मुहाजिर के दरमियान भाईचारा कायम किया। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोते हुए आए, या रसूल अल्लाह आपने लोगों के दरमियान तो भाईचारा कायम किया, तो आखी बैनी व बैन अहदिन, लेकिन मेरा और किसी के साथ भाईचारा कायम नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ए अली अंता अखी फी दुनिया वल आखिरा। क्या कमाल है यार कि आप दुनिया में मेरे भाई हो, आखिरत में मेरे भाई हो। कितनी बड़ी फजीलत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन, जो कायनात की अजीम हस्ती हैं, हज़रत अली उनके भाई हैं। आपने फरमाया ला युहिब्बु अलियन इल्ला मुमिन वला युबग़िदुहु इल्ला मुनाफिक। अली से मोहब्बत मोमिन करेगा, अली से बुग़्ज़ मुनाफिक रखेगा। यानी जो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बुग़्ज़ रखेगा वो मुनाफिक है, उसके दिल में ईमान नहीं।
कितनी बड़ी बात है। आपने इरशाद फरमाया अली मअल कुरानी वल कुरान मा अली नहीं यफ्तारिका हत्ता यरिदा अलैयल हौद। अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है, ये कभी आपस में जुदा नहीं होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही दे रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि अली और कुरान आपस में कभी जुदा नहीं होंगे यहाँ तक कि ये दोनों मेरे पास हौज़े कौसर तक पहुँच जाएं। यानी अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पूरी ज़िंदगी कुरान के मुताबिक है, कुरान से हट कर कभी नहीं गुजरेंगे। इनका फैसला कुरान के मुताबिक होगा, इनका उठना बैठना कुरान के मुताबिक होगा। कुरान में आता है कि इम्मुन अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। मुफस्सिरीन लगते हैं ये रिवायत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हक़ में उतरी है। कैसे उतरी है कि एक दिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खाना नोश फरमा रहे थे, बाहर से ऐलान हुआ, सदा आई कि मैं मिस्कीन हूँ, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, मुझे खाना दिया जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने एक रोटी रखी हुई थी, वो जाके उस मिस्कीन को दे दिया। दूसरा दिन हुआ, खाना नोश फरमाने के लिए बैठे, वहीं फिर सदा आ गई, मैं यतीम हूँ, मुझे कोई पालने वाला नहीं है, मुझे खाना दिया जाए, मुझे भूख लगी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक ही रोटी थी, वो कर उन्हें दे दी। तीसरा दिन हुआ, वही मामला, वैसे अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हैं, बाहर से सदा आई, मुनादी पुकारने वाला कहता है कि मैं कैदी बन के आया हूँ, मेरा कोई वली वारिस नहीं है, मैं भूखा हूँ, मुझे खाना दिया जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठे, वो रोटी भी जाकर उसको उठा दी। अल्लाह पाक ने फिर ये आयात नाजिल कर दी, युतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी फजीलत है। एक और जगह मुफस्सिरीन लिखते हैं इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु अल्लज़ीना युकीमून अस्सलाता व युतून अज़्ज़काता व हुम राकिऊन। अक्सर मुफस्सिरीन का कौल यही है कि ये आयात भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में उतरी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ रहे थे, कोई मांगने वाला आया तो उससे अपनी अंगूठी उतार कर दे दी, तो अल्लाह पाक ने उनकी तारीफ के लिए ये आयत उतार दी। वो रकू की हालत में भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करते रहते हैं। आप देखें अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिश्ता मांगने जा रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जिब्राइल ऊपर से हुक्म लेकर नाजिल हो गया कि ऐ मोहम्मद, अल्लाह की तरफ से हुक्म है कि अली आपसे रिश्ता मांगने आ रहा है, आपने फातिमा का रिश्ता अली को देना है। और आपने क्या फरमाया, फातिमा तो बिज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जो इसे तकलीफ देगा उसने मुझे तकलीफ दी है। और अपने लख्ते जिगर को किसे दे रहे हैं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। पहले अबू बकर सिद्दीक भी मांगने गए, हज़रत उमर भी मांगने गए, मेरे ख्याल से अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी रिश्ता मांगने गए, उन तीनों को इनकार हो गया। लेकिन ये फजीलत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हासिल है कि वो दामाद रसूल हैं, वो रसूल के दामाद बन गए, जिनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल चली है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चंद मशहूर अक़वाल भी यहाँ तज़किरा करता चलूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला मशहूर कौल है अन्नासु नियामुन इज़ा मातू इंतबहू, लोग सो रहे हैं, जिस दिन मरेंगे इनकी आंखें खुलेंगी। अभी ये दुनिया के अंदर पड़े हुए हैं, अभी ये लालच के अंदर पड़े हुए हैं, अभी ये गुनाह और सवाब में फ़र्क नहीं कर रहे, अभी ये शरीयत पे अमल नहीं कर रहे, ये अभी गहरी नींद में हैं। इज़ा मातू इंतबहू, जिस दिन ये मरेंगे इनको पता लगेगा कि ये इन्होंने क्या खोया है, क्या पाया है। अब मैं आखिर में चंद बातें आप लोगों की खिदमत में पेश करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ कुछ बातों को मौजू सुखन बनाया जाता है कि कौन अफजल है, कौन अफजल नहीं है। मैं जो समझता हूँ इस तरह के मौजू वक्त का ज़िया है, फजूल तरीन मौजू हैं। देखें, अल्लाह पाक ने ना मुझे ज़िम्मेदारी दी है, ना किसी और को ज़िम्मेदारी दी है कि हम सहाबा कराम की तक़सीम करें, हम बताएं कौन अफजल है, कौन अफजल नहीं है। हमारे ज़िम्मे अपना काम है। कुरान पाक में अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं, तिलका उम्मतुन क़द खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलून अम्मा कानू यअमलून। जो वो कौम थी गुजर गई है, उनके अमाल उनके खाते में, तुम्हारे अमाल तुम्हारे खाते में, तुमसे उनके बारे में नहीं पूछा जाएगा। मुझसे कसम ले लें, कुरान पाक में सर पे रख कर कहता हूँ कि क़यामत वाले दिन ना कब्र में हमसे अल्लाह पाक ये सवाल नहीं करेगा कि बताओ अफजल हजरत अली थे या अबू बकर सिद्दीक। ना ही अल्लाह पाक ने हमें जिम्मेदारी दी है। हमें क्या जिम्मेदारी दी है, हमें ये जिम्मेदारी दी है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल करें। कैसे अमल करें, हम देखें कि सहाबा कराम ने कैसे अमल किया,
ہم دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کی غلامی کیسے کی، حضرت بکر صدیق نے غلامی کیسے کی، حضرت عمر نے غلامی کیسے کی، حضرت عثمان نے غلامی کیسے کی۔ ہم ان کی غلامی کو دیکھ کر اسی طرح رسول اللہ کی غلامی کریں، یہی میرے اور آپ کے لیے کامیابی ہے۔ آپ نہیں سنتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لهم لعنت اللہ علی شرکم، جب تم دیکھو کوئی گروہ، کوئی فرقہ، کوئی بندہ میرے صحابہ کرام کے بارے میں غلط بات کر رہا ہو، تم انہیں کہہ دو اللہ کی تمہارے شر پہ لعنت ہو، تم پہ لعنت ہو۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ فی اصحابی لا تتخذهم من بعد غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فبغضی ابغضهم۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے خوف کرتے رہنا۔ جو ان سے محبت کرے گا وہ بھی میری وجہ سے محبت کر رہا ہوگا، جو ان سے بغض کر رہا ہوگا اصل وجہ اس کا مجھ سے ہی بغض ہے۔ ہم کیوں ان معاملات کو موضوع سخن بنا کے نماز ہم نہیں پڑھتے، روزہ ہم نہیں رکھتے، قرآن ہم نہیں پڑھتے، زکوٰۃ ہم نہیں دیتے، صدقات ہم نہیں نکالتے، برائیاں ساری ہماری اندر ہیں، نشہ ہم کرتے ہیں، زنا ہم کرتے ہیں، طوائفوں کے ساتھ ہم ناچتے ہیں، پھر ہم آ کے فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ حضرت علی افضل ہیں یا بکر صدیق افضل ہیں۔ بھئی ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے، ہماری ذمہ داری ہے ان سے محبت کرنا، ہماری ذمہ داری ہے ان کو اپنا آئیڈیل سمجھنا۔ آج تک میری عمر 25 سے 26 سال ہے، کسی بھی، میں اپنے اہل سنت والجماعت کی بات کروں گا، میرے انکاروں نے کبھی بھی اہل بیت اطہار کے بارے میں کوئی بھی ناگوار الفاظ نہیں سنے، لیکن دوسری طرف اہل تشیع حضرات جہاں بھی ان کو موقع ملتا ہے سانپ کی طرح ڈس لیتے ہیں، جہاں بھی ان کو موقع ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ کیوں بھی گستاخی کرتے ہو؟